everyone. Very good morning to all of you. It's really good to see all of you as we all are together for this income tax related session. So, first, let me introduce myself. My name is Shivangi Mittal. I'm a chartered accountant by profession and also CA in practice in Delhi. Okay. Based on if I talk about my experience, then since 2011, I am into income tax, and then earlier we used to basically work on service tax, excise, etc. ये सब चलता था, right? Now, when GST came, then obviously as a CA in practice, you cannot say, okay, we will not do GST. Or, okay, you have to take up each and every work. And most, if I talk about my profile, then I'm more into this income tax and international taxation field. So from today, we are going to start with your income tax related sessions. So, with today's session, it is going to be very, I would say, simple, the easy one, because we are going to understand about the slab rates. First, we will understand what is direct tax and indirect tax, followed by what are my slab rates applicable for the financial year 24-25 and the next financial year. Okay. I will also tell you about the concepts like Finance Bill, Finance Act, how do things work. Everything will be delivered and will be shared with all of you. Okay. So for this, I am sharing my PPT with all of you. So just give me a second. Let me share my PPT. So first, let's understand कि direct tax क्या होता है. ठीक है? Understanding direct taxes in India. Let's understand the difference between direct tax and indirect tax. Okay? And it would be great if anyone, or I mean, every one of you can switch on your camera. However, if you're in office, then that's completely okay for me. Then चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म टैक्सेशन? टैक्सेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट आपसे कुछ फाइनेंशियल चार्ज लेती है. ठीक है? When the government takes some financial charge from you, it can be levy in the form of, say, excise duty, in the form of VAT, in the form of, say, service tax, everything. Okay? So टैक्स का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट आपसे कुछ चार्ज लेती है. अब चार्ज क्यों लेगी वो आपसे? चार्ज लेगी ताकि वो हमारा सोशल वेलफेयर वगैरह कर सके, राइट? ताकि एक तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट हो और साथ में द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम पे वो लोग काम कर सके. जब टैक्सेस के बारे में बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. नंबर वन, it is your direct tax. Number two, it is your indirect tax. Okay, and then obviously we do have the एक होता है ना कि अलग अलग फिर हमारे सब पॉइंट्स आते रहते हैं. तो बट अगर मैं मेजर ओवरव्यू देखूं तो मेरा पहला आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस. टाइप्स ऑफ टैक्सेस, नंबर वन इज योर डायरेक्ट टैक्स and another is your indirect tax. So first let's understand what do we mean by the direct tax and indirect tax. Okay, see, direct tax. Okay, now just say we have Sudeep here, right? Sudeep Manna, right? Yes, ma'am. So yes, Sudeep Manna is here. Now, whatever the income he is earning, okay, if he is paying directly to the government, मतलब सुदीप मन्ना जो भी इनकम कमाते हैं, अगर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स. ओके, अब ऐसी कौन कौन सी इनकम हो सकती है? जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि वो ऑफिस में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली मेरी सैलरी इनकम तो हो ही गई, राइट? Yes. सेकेंड, मैंने सैलरी में से मेरा से 100% सैलरी है, जितना भी सैलरी है मैं उस पर नहीं जाऊंगी. 100 में से चलो 90% मेरा खर्चा हो गया, 10% मेरा सेविंग अकाउंट में पड़ा है. अब उस 10% जो मेरा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, उसका मैं ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो मेरा उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा. सो वॉट एवर द इंटरेस्ट अमाउंट आई एम अर्निंग, आप में से कुछ लोग फ्यूचर इन ऑप्शन में भी डील कर सकते हो, शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट? तो जो भी आपका शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी की रेंटल इनकम हो सकती है, किसी का डिविडेंड इनकम हो सकता है. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट, आई वुड से, द इनकम का कैटेगरीज. सैलरी है, पेंशन है, ठीक है, सब कुछ आ सकता है. ठीक है, सो जो भी इन इनकम पर आपका टैक्स बनेगा, कितना टैक्स बनेगा, क्या बनेगा, वो तो ऑब्वियसली हम सेशंस में कवर करेंगे ही. ठीक है, जो भी आपकी इस इनकम पर टैक्स बनेगा, अगर वो आप डायरेक्टली पे करते हो, डायरेक्टली किसको पे करते हो? गवर्नमेंट को पे करते हो,
वो मेरा कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल आता है मेरा इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स इज समथिंग, whatever the amount you are actually earning, okay, whatever the amount you are actually earning, you are paying taxes to the government directly. So this is your direct tax. I hope it is clear to every one of you. Do let me know. You can just unmute yourself and जिसका भी जो क्वेश्चन हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। Yes, Sudeep, you want to say something? डायरेक्ट टैक्स में आपका ओनली फॉर जो भी इंटरेस्ट आता है उसको कैलकुलेट ओनली होता है, इंटरेस्ट ओनली ये होता है जाता है, या जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो भी इंक्लूड होता है डायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स तो मेरा टैक्स पे करना ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। जो इंटरेस्ट है या जो बाकी चीजें हैं वो मेरा बेसिकली डायरेक्ट टैक्स क्या है उसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में ये फिर चीजें आ जाती है, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, बाकी चीजें हो गई, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ेगा आगे आगे के सेशंस चलेंगे, ऑब्वियसली we will understand about all the concepts, okay? And number one thing, I personally like to teach on practical basis, okay? 31st मार्च आने वाला है और बहुत सारी चीजें हम लोग practically discuss करेंगे। We can also discuss about tax harvesting. We can also discuss about the international taxation. So basically, it will be mix and match of each and everything. We will discuss about the tedious part, and let me tell you, whatever we are going to discuss, the theoretical version that is definitely we are going to cover, because theory किए बिना like ABCD सीखे बिना मैं sentences नहीं बना सकती, right? But also I will show you the practical version of it. Okay, so direct tax is something. The example is income tax. Do we have any other questions? किसी और के और कोई questions है? Since you all are in office as well, I mean most of them, then you can just write down in the chat box as well. If you have any questions, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर किसी का जो भी आपका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। चलो, now let's talk about indirect tax. What do we mean by indirect tax? Indirect tax होता है that we pay the taxes indirectly to the government, okay? And even if a small kid, if we talk about a small kid, एक हम छोटे बच्चे के बारे में बात करें और अगर वो चॉकलेट लेता है, ठीक है, वो चॉकलेट पे भी इनडायरेक्टली टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। Now let's understand. Suppose we have Krishna here, Krishna Singh, okay? Yeah, good morning. Good morning, Krishna. Okay, so we have Krishna here, okay? I can take anyone's name and I would like to know about all of you as well, okay? So please be active during the sessions because it helps us to create a network as well, right? Okay, so we do have Krishna here. Now, Krishna basically wants to purchase, say, a laptop for herself. Okay, she wants to purchase a laptop. So she goes to this Chroma store or maybe say HP store, कोई भी store में जा सकते हैं वो, ठीक है। वहां पे वो लोग गए और उन्होंने वहां से लैपटॉप परचेज किया। लेट्स से लैपटॉप का कॉस्ट है मेरा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का लैपटॉप परचेज करा, ठीक है। अब 1 लाख रुपए के लैपटॉप पे मेरा लगता है जीएसटी, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही 1 लाख पे लगता है, मतलब लैपटॉप पे जीएसटी लगता है, ठीक है। Say the GST amount is 18%. Say the GST amount is 18%. Okay? Assume कर रहे हैं तो मेरा 1 लाख पे जीएसटी कितना लगा? 18,000 रुपए, राइट? तो क्रोमा के स्टोर ने या एचपी के स्टोर ने कृष्णा से ले लिए 18,000 रुपए, सॉरी 1,18,000 रुपीज, ठीक है। अब इस 1,18,000 में से 18,000 was the amount, 18,000 was the amount जो जीएसटी का था। अब एचपी स्टोर ने क्या किया, ये जो जीएसटी का अमाउंट है ये पे कर दिया किसको? ये पे कर दिया डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो कहना है इससे कि अमाउंट तो मुझसे ही रिकवर किया गया, राइट? अमाउंट तो मुझसे ही रिकवर किया गया, बट मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से मैंने डायरेक्टली पे कर दिया। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल ही गलत है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रूट करके एक तरीके से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ। डू यू ऑल एग्री? यस मैम। समझ में आया? ओके, परफेक्ट। So this is one of the example of indirect tax. Repeating the same again. Direct tax क्या होता है? When you are paying taxes to the government directly. Okay? When you are paying taxes to the government directly. Whereas when we talk about indirect tax is something when you pay taxes to the government
इनडायरेक्टली आपसे रिकवर किया जाता है एंड देन सामने वाली पार्टी आगे जाके पे कर, ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू आवर topic, the theoretical version. So generally, I don't spend so much time in the theoretical version because obviously theory is something कभी-कभी किसी को boring भी लग सकती है और plus we are doing income tax, okay? So income tax is basically all about practical. सब लोगों को लगेगा बस आज ही ताकि हम कुछ ना कुछ बना दें, right? So that is the reason I first let's understand few basics of it and then we will come to this slab rate thing. Okay? Now, meaning of tax, as you can see, definition. Just give me a second. Yeah. So definition of taxation according to the Article 366(28) of the Constitution of India. Taxation encompasses the imposition of any type of tax, whether it is general, local or special. अब जो taxation है ना वो ये सिर्फ income tax और GST तक associated नहीं है. Do you know house tax भी एक चीज होती है. House tax. अगर आप वाइन पीते हो तो वैट भी एक चीज होती है, राइट? नहीं भी पीते हो तो भी होती है, ठीक है. और अगर आप बेसिकली एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग में हो तो वहां पे एक्साइज भी लगता है कुछ प्रोडक्ट्स पे. सो टैक्सेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि से इनकम टैक्स होगा, जीएसटी होगा. देयर आर स्टिल सो मेनी टैक्सेस. प्रोफेशनल टैक्स है. इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर, इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, देन the employers are paying the professional tax as well. So there are multiple, I would say, versions of taxes. But obviously, when it comes to the course which we are referring, यहाँ पे हम बेसिकली इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में समझेंगे बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू एनहेंस आवर स्किल्स इन फॉर आवर फ्यूचर एज वेल, राइट? वॉट एवर वी आर डूइंग. और पर्पस तो मैंने आपको बता ही दिया. गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ताकि वो सोसाइटल नीड्स को पूरा कर सके, लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, the education part. Okay, so as I said, there are two types of taxes. One is your direct tax and indirect tax. We have already understood about the same. Okay, so why taxes are levied? क्यों लगाया जाता है taxes? Number one, it is your basic source of government revenue. Okay, government का revenue अगर आप देखोगे, उनका balance sheet आप देखोगे, तो basic source of government revenue taxes ही है. And even if you visit the website of income tax, GST, वो time to time अपने statistics भी release करती है that this is the revenue that they have earned. ठीक है. Second, safety, defense के लिए या जो भी आपकी सोशल वेलफेयर है उसके लिए वो इस रेवेन्यू को यूज करते हैं. एजुकेशन की फंडिंग के लिए रेवेन्यू को यूज किया जाता है. हेल्थ केयर के लिए रेवेन्यू को यूज किया जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिल्डिंग्स हैं, रोड्स है, ब्रिजेस है, इन सब के लिए भी हमारा जो टैक्सेस है इनको यूज किया जाता है. ठीक है. अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ. लेट मी शेयर माई अनदर पीपीटी विद ऑल ऑफ यू. लेट्स टॉक अबाउट द स्लैब रेट्स नाउ. ओके, my PPT is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, perfect. ठीक है. And this is important for everyone of us, okay? Because you all are salaried employees. Maybe you have your own business income. And if you are not working today, then you will be working in future, right? Be it business income, be it capital gains, be it salary income, it does not matter, okay? This is applicable for every one of us, okay? Let's talk about the income tax slab rates, which is your computation of income for salaried employees or business individuals for financial year 24-25. Okay. Before starting the same, I want to share about Finance Bill and Finance Act as well. Okay. So every year on 1st Feb, budget is announced. Okay. Every year on 1st Feb, budget is announced. एंड डू यू एग्री, सपोज आपके घर में शादी है और उसका बजट बनता है, राइट? तो डू यू एग्री जो बजट बनेगा वो हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, राइट? बजट हमेशा क्या बोलता है कि हम आगे का बजट बनाते हुए चल रहे हैं, राइट? आपके घर में, आपके जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, घर में कोई बड़ा कुछ फाइनेंशियल परचेज करना है, से कार परचेज करनी है या घर ही खरीदना है, तो हम क्या करते हैं? हम बजट बनाते हुए चलते हैं, लाइक थोड़ा सा सेविंग करते हुए चलेंगे ताकि हम लोग चीजें खरीद पाए. घर का खर्चा चलाना है, उसके लिए भी बजट जरूरी है. सो कैन आई से जो बजट है हमारा, बजट इज ऑल अबाउट फ्यूचर के बारे में बात करेगा, राइट? सो ये जो 1st फेब को एवरी ईयर बजट आता है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर. ठीक है. सो अगर आप न्यूज चैनल पे अगर एक्टिव होंगे उस दिन,
तो फर्स्ट फेब 2025 को इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस बिल 2025। ठीक है, अब बिल आ गया तो जो भी नोटिफिकेशन आती है या जो भी चेंजेस होते हैं वो मोस्टली आप न्यूज चैनल पे देखते ही हैं। तो किसी ने 12 लाख का प्रोविजन भी सुना होगा, इफ यू आर एक्टिव। नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग तो डिस्कस करने ही वाले हैं, राइट? सो दिस इज योर फाइनेंस बिल नाउ। Okay, now, so on 1st Feb, the finance bill was introduced. Now, please tell me one thing. Okay, when a budget is introduced, obviously उसको रखा जाएगा सबके सामने, ठीक है? 1 महीने का टाइम दिया जाएगा अप्रॉक्स कि अगर कुछ चेंजेस है, कुछ गलत है तो बता दो। इट्स सेम एज कि सपोज करो 4 भाई हैं, ठीक है? से ABCD, एक की बेटी की शादी है, ओके? एंड जॉइंट फैमिली है और इनके जो फादर हैं, ठीक है, इनके जो फादर हैं वो बेसिकली सपोज करो ए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि 5 लाख रुपए, हमें 5 लाख रुपीज वी शुड कीप इट फॉर गिफ्ट्स। बी बोलते हैं कि 3 लाख रुपीज से फॉर फूड, 2 लाख रुपीज फॉर गेस्ट, एक्सेट्रा। इस टाइप से बजट बनता है। तो बजट बनने के बाद ऑब्वियसली शेयर किया जाएगा आगे, राइट? और कोई उसको अप्रूव करे या जो भी अमेंडमेंट्स है वो सबके लिए रखा जाता है, ठीक है? दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, whenever a budget is announced, it is known as Finance Bill 2025. But sometimes certain provisions in the budget is maybe there is some understanding का कुछ gaps हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ उसमें errors हैं, कुछ omissions हैं, so almost approximately 1 month का टाइम दिया जाता है अपने को, ठीक है? उसके बाद when president signs the same, it is known as Finance Act 2025. Finance Act 2025. Okay, and whatever the provisions of Finance Act, these are applicable. So sometimes bill is basically the proposed changes and act is basically the applicable changes. Repeating the same in Hindi. बिल अगर आता है तो बिल को हम बोलते हैं कि ये चेंजेस होने वाले हैं, फिर 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अब जैसे 1st फेब को बजट आया तो अभी ये मार्च के आसपास अभी जो पार्लियामेंट्री सेशन होगा उसमें जैसे ही आपका प्रेसिडेंट साइन कर देंगे आपके बिल को, हो सकता है कि जो कुछ चीजें अनाउंस की गई थी बिल के अंदर उसमें और अमेंडमेंट्स की गई हो, ज्यादा नहीं होती है बट कुछ अमेंडमेंट्स की गई हो, और जब उसको प्रेसिडेंट साइन कर देंगे वो कहलाता है मेरा फाइनेंस एक्ट 2020, मतलब फाइनेंस एक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। अभी 2025 चल रहा है, सो इट इज 2025। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, नाउ बट डू यू एग्री every year we do have elections? I mean, not every year, every 5 years we do have elections. So जब भी 5 साल में इलेक्शंस होते हैं ना, जैसे लास्ट ईयर 2024 में इलेक्शन थे, राइट? तो 1st फेब को जो बजट अनाउंस हुआ, वी कॉल्ड इट एज इंटरिम बजट। फर्स्ट फेब को जो बजट अनाउंस हुआ, वी कॉल्ड इट एज इंटरिम बजट। एंड देन व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जुलाई 24 में दोबारा से बजट अनाउंस हुआ and we call it as final budget. Okay, so whenever there are elections, okay, whenever there are elections, the central government elections, okay, then in that particular year the budget is announced 2 times. उस particular year में बजट हमारा 2 बार आता है। एक तो आया 1st फेब को, उसको कहते हैं इंटरिम बजट, और एक आया हमारा जुलाई मंथ में जिसको हम बोलते हैं फाइनल बजट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद आवर एलैबोरेट टॉपिक।
You can also write it down in the chat box. So since I have not received any response, I am assuming कि कोई क्वेरी नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाती इतना अच्छा हूँ. तो अब आगे बढ़ते हैं स्लैब रेट से. ठीक है. ओके, चलिए स्लैब रेट से स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए. Let's talk about income tax slab rates, computation of income for salaried employees, business individuals, and these slab rates are applicable for financial year 24-25. Okay, as amended by Finance Act 2024. अब ध्यान से सुनना, ठीक है? And I can understand you all are in office, so maybe you cannot speak, but we are going to solve lots and lots of questions related to this slab rate. So I really want you to solve the questions. Maybe if you have calculator, just write it down. Okay, then chat box में आप please answer कर दीजिएगा. Okay, now there are two types of tax regimes. Okay, there are two types of tax regimes. One is your old tax regime and second is your new tax regime. There are two types of tax regime. One is your old tax regime and second is your new tax regime. When it comes to old tax regime, all the deductions and exemptions are available. When it comes to old tax regime, all the deductions and exemptions are available. What about the new tax regime? As per the new tax regime, the deductions and exemptions are not available. अब ये deductions होता क्या है, exemption होता क्या है, we will understand. So जब भी अभी 31st March आने वाला है, and it is one of the most important, I would say, period for the tax planning. टैक्स प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 31st मार्च तक की टैक्स प्लानिंग हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती. ओके, व्हाई 31st मार्च? बिकॉज every country follows financial year. Okay, every country follows financial year. When it comes to India, जब मैं इंडिया के बारे में बात करती हूँ ना, तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च. ओके, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च. सो कैन आई से दैट दिस फाइनेंशियल ईयर वाज स्टार्टेड back in 1st April 2024 and it will end on 31st March 2025? Do you agree? Also, can I say it is my financial year 24-25 right now? The financial year 24-25. When I was doing my articleship now, I used to think that every country follows this financial year. I had this misconception in my mind. But then I realized when I worked with some foreign clients as well, I have realized when it comes to other countries, say, let's talk about US. US have different financial year. Okay, so when it comes to US, the financial year starts from Jan to December. Okay, when it comes to UK, its financial year starts from 6th April to 5th April. What does that mean? That for UK, the financial year was started on 6th April 2024 and it will end on 5th April 2025. Okay. When it comes to Australia, so for Australia, the financial year starts from 1st July and it will end on 30th June. So basically for Australia, it was started on 1st July 2024 and it will end on 30th June 2025. So with this information, what I'm trying to say, that it is not necessary that if India is following this financial year 24-25, ये जरूरी नहीं कि अगर India financial year 24-25 follow कर रहा है, which is started back in April and it will end in the month of March, okay, then it is not necessary कि बाकी countries भी same follow कर रही होंगी. Okay, it can be different for other countries. It can be similar for other countries as well. तो हो भी सकता है, बट अगर मैं बाकी इन क्लाइंट्स के बारे में बात करूं, ठीक है, जैसे यूएस का, यूके का और आपका बाकी कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एक्सेट्रा, सो डिफरेंट आपके फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं और हैं भी. ठीक है,
Now let's talk about the tax regimes. As I said, for the tax regimes, one is your old tax regime and second is your new tax regime. The old tax regime is where all the deductions and exemptions are available. And for a time being, let's understand deduction और exemption का मतलब है कि कुछ थोड़ा बहुत आपको benefit मिल जाता है, ठीक है? न्यू टैक्स regime में ऐसा कोई benefit नहीं मिलता, मतलब ना तो कोई डिडक्शन मिलेगी ना ही कोई एग्जेम्पशन मिलेगा। और जब मुझे ना डिडक्शन मिल रही है ना एग्जेम्पशन मिल रही है तो मैं न्यू टैक्स regime में जाऊंगा क्यों? Let's understand why I will prefer this. Praveen Singh is asking, is there any method to choose financial year by country? I didn't get your question. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा पर्पस ये था जानने का कि इज देयर एनी मेथड लाइक कि कोई कंट्री फाइनेंशियल ईयर चूज करती है, जैसे आपने बताया ना यूके यूएस में अलग अलग क्राइटेरिया है फाइनेंशियल ईयर, जैसे 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल फॉर यूके, हाँ जी। फॉर अदर कंट्रीज तो जैसे इंडिया में हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो ऐसा कोई कंट्री का कोई मेथड होता है या कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट जिससे कि वो चूज करते होंगे कि हाँ भाई इस पीरियड से इस पीरियड तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा? नहीं, ऐसा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ये तो बस एक होता है ना कि इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने कर दिया कि चलो इस डेट से इस डेट तक रखते हैं। और एक होता है ना कि जैसे कल्चर बोलूंगी ना कि जैसे एक होता है ना कि एक चीज हमने स्टार्ट करी फिर वही चीज चालू हो गई, इस टाइप से। ओके हाँ, ओके मैम। चीज है, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सके। ओके लाइक अगर जैसे सबके लिए तो बोल दिया गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो अगर आपका से जो कंपनी है पेरेंट एंटिटी वगैरह, अगर वो से यूएस में और आप जैन टू दिसंबर करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। फॉर्म्स वगैरह फाइल करने पड़ते हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन कोई उस चीज में जाता नहीं है बिकॉज वो बहुत ही सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है करना, ठीक है। ओके नोटेड मैम, हाँ थैंक यू। हाँ जी। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्लैब रेट्स अंडर ओल्ड टैक्स regime. ओके, these are the tax rates in case of an individual, HUF, AOP और BOI. अभी जो हम बात करेंगे we will discuss about the individual only. What is HUF, AOP, BOI? We will discuss the same definitely, but not right now. These are the slab rates as per the old tax regime. If there's an individual, suppose we have Praveen, we have Sumit here, okay, we have Jitendra here. Their age is less than 60 years, okay? Then in that case, they have to follow this slab rate that up to 2.5 lakhs, it is 0%. 2.5 lakhs to 5 lakhs, it is 5%. 5 to 10, it is 20%. And above 10, it is 30%. मतलब क्या मतलब है इसका? Let's understand. Okay. Let's solve one question. Slab rates under old tax regime. The slab rates under old tax regime. Okay. Now, the slab rates which we follow here is 0 to 2,50,000. It is 0%. 2,50,000 to 5 lakh. It is 5%. 5 lakh to 10 lakh. It is 20%. And above 10 lakh, it is 30%. Okay. Suppose there is an individual, जितेंद्र के बारे में अब हम बात करते हैं, ये है हमारे जितेंद्र। ओके, इनकी जो टोटल इनकम है, जितेंद्र आपकी इनकम मैं कितनी बताऊं? बताओ, 18 लाख 20 लाख बता दो? जितेंद्र बोलेंगे मेरे को तो 1 करोड़ भी चलेगा, बट अभी मैं 20 लाख पे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि जितेंद्र की इनकम है 20 लाख। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट tax on this 20 lakh rupees as per the old tax regime. Okay. And as I said, we follow the slab rates. So what we are going to do here, can I write it like this? 0 to 2,50,000 rupees, 0%. 2,50,000 to 5 lakh rupees, 5%. 5 lakh to 10 lakh rupees,
20%. 10 lakh to, my salary is up to 20 lakh, right? My taxable income, 20 lakh rupees, it is 30%, right? This is the slab rate. What I need to do in this case now, just subtract the higher limit with the lower limit. Okay, that means 2,50,000 minus 0 is 2,50,000 rupees, right? 5 lakh minus 2,50,000, it is 2,50,000 rupees. 10 lakh minus 5 lakh, it is 5 lakh rupees. 20 lakh minus 10 lakh, it is 10 lakh rupees. Okay. Now, you need to multiply the same. So 0% of 2,50,000, it is 0. 5% of 2,50,000, it is 12,500. 20% of 5 lakh, it is 1 lakh rupees. And 30% of 10 lakh, it is 3 lakh rupees. Okay. Now, we will add the same. This is my tax amount. Okay. This is my tax amount. It would be 4,12,500. Once you calculate this tax amount, you need to add health and education cess. Which is at the rate of 4%. Okay. You need to add health and education cess, which is at the rate of 4%. 4% of what? 4% of 4,12,500. Okay. So let's calculate the same. 4,12,500 multiplied by 4%. It would be 4,12,500 multiplied by 4%. It would be 16,500. Okay. Now, just add this. 4,12,500 plus 16,500. It would be 4,29,000. Okay. This is my tax amount, the total tax liability. Total tax liability. Okay. This is my total tax liability. Now, what is health and education cess? ये नहीं समझ में आया. आखिर ये होता क्या है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? ठीक है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जितने भी फंड्स जा रहे हैं ना, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे. डू यू रिमेम्बर समवेयर बैक इन 2002 2001 के आसपास एक टीवी पे ऐड आता था, स्कूल चले हम, राइट? बिकॉज वी वर प्रोमोटिंग द गर्ल्स एजुकेशन. Okay. And the government also have these government schools in tier 1, 2 or 3 cities. So they need to manage all these things. Then there are government hospitals. So whatever the fund is basically going to this health and education cess, it is going to be utilized for the health and education sector only. I hope it is clear to every one of you. Right? Yes, ma'am. So can I give all of you one question? My question to you is, please calculate total tax liability when your taxable income is, say, 12 lakh rupees. These are the slab rates given in front of you. My taxable income is 12 lakh rupees. I am giving all of you, say, 2 minutes of time. 2 से 3 मिनट का आप टाइम लो, कैलकुलेट करो 12 लाख पे कितना टैक्स बनेगा. If you're someone who cannot unmute yourself because you are in the office, then in that case, mention your in the chat box. Okay? 1,79,400 rupees. Okay. जितेंद्र का क्वेश्चन आंसर है 1,79,400. Yes. Okay, let's किस किस का करेक्ट होगा? 1,79,400. Also the same answer. 1,79,400. Chalo, perfect. 179,400. Akash, Praveen, perfect. Sumit is also saying 179,400. Sudeep, Suman, Rajiv, Vijay. Yes. सबका सेम आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि आंसर तो सही है, राइट? परफेक्ट. State India is okay. Admin 179,400. That means आंसर तो सेम आ रहा है हमारा. तो आंसर तो डेफिनेटली सही होगा, राइट?
चलो एक बार देख लेते हैं, मैं भी कैलकुलेट करके देख लेती हूँ। 0 to 2.5 lakhs 0%, 2.5 to 5 lakhs 5%, 5 to 10 lakhs 5 to 10 lakhs 20%, and 10 to 12 lakhs it is 30%, right? Then I need to calculate the differences. It is 2.5 lakhs, 2.5 lakhs, 5 lakhs, and 2 lakhs. Then I need to multiply by the same. 12,500, 1 lakh, 60,000. It would be 1,72,400, sorry, 500. And then I need to add the 4% of it. It would be 179,400. वाह, परफेक्ट, सबने अच्छे से कैलकुलेट करा। 6,900 का हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा, विच इज एट द रेट ऑफ 4%, राइट? ओके, what I have understood from these answers, that you all are somewhere aware of these tax liabilities. सब लोगों को पता है ऑलरेडी कि इस तरीके से कैलकुलेट होता है, या दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर एक्चुअली देख रहे हो आप इस चीज को? नहीं, टैक्स स्लैब तो पता था मैम, बट ना ये कैलकुलेशन नहीं, तरीका नहीं पता था। तरीका नहीं पता था, ओके ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दूं या फिर मैं आगे थोड़ा सा 50 लाख के ऊपर जाऊं इनकम को? एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद 5 लाख से नीचे और फिर 50 लाख से ऊपर जाते हैं, ठीक है? चलो, टैक्सेबल इनकम इस केस में है आपकी, लेट्स से 27 लाख रुपीज, ओके? क्योंकि स्लैब रेट हो सकता है आपको याद नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जीरो परसेंट 6,47,400 rupees. 6,47,400। 400. आप लोग तो जनरली बहुत फास्ट हो यार, मैं तो पूरा लिखा भी नहीं। ओके चलो, सॉरी 5 लाख। सभी का यही आ रहा है 647,400। सबका आंसर ये है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। यस, राइट। तो 954,7 647,400। आई होप सबका आंसर यही है, राइट? चलो परफेक्ट, ठीक है। अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से ओल्ड टैक्स रेजिम में मेरा टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब दो कैटेगरीज और लेते हैं इनकम की, जहां पे आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और एक बार 50 लाख से ऊपर कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज इनकम जो कि 5 लाख रुपए तक है, ठीक है। सो माई टैक्सेबल इनकम, let's say it is 4,90,000 rupees. My taxable income is 4,90,000 rupees. Okay. When taxable income is less than or up to 5 lakh rupees. My taxable income is in this case is 4,90,000 rupees. Okay. So now what I will do, 0 to 2.5 lakh,
0%, राइट। नेक्स्ट स्लैब है 2,50,000 टू 5 लाख तक का, बट माई इनकम इज 490, my income is 490, so it would be 5%. I will reduce the same. It is 2,50,000 rupees and 2,40,000 rupees. Then multiply the same 0 and it would be 2,40,000 multiplied by 5%, which is 12,000 rupees. $60,500 490 पे जितेंद्र 60,500 कैसे आया मुझे? 12,480. ठीक है, देखो 12,000 आया सबका टैक्स, बारह 12,480। बट ना एक हमारा ना सेक्शन 87A है, सेक्शन 87A वो कहता है कि रिबेट इज अवेलेबल if your income is up to 5 lakh rupees। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो रिबेट अवेलेबल है। और रिबेट कितनी होगी? रिबेट होगी 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिड्यूस लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ओके। एंड रिबेट अमाउंट क्या होगा? 12,500 और टैक्स अमाउंट विच इज 12,000 रुपए। सो विच एवर इज लोअर इज 12,000 ओनली, राइट। So therefore in this case there is no tax liability। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? Yes, ma'am. नहीं मैम, दोबारा रिपीट करना एक बार। हाँ, दोबारा रिपीट मैं करती हूँ। देखो, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो टैक्स एज पर स्लैब पहले ऐसे के ऐसे कैलकुलेट करो जैसे आप करते आए हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको एक रिबेट मिलेगा। वो जो रिबेट है वो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। ये सेक्शन कहता है कि देखो रिबेट आपको मिल जाएगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, और रिबेट का अमाउंट कितना होगा? या तो 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट। 12,500 क्यों लिया? सिंपल सी बात है, अगर आप 2,50,000 टू 5 लाख कैलकुलेट करते हो तो 12,500 ही आता है, राइट। जो ऊपर भी मैंने कैलकुलेट करा था हम लोगों ने 12,500 ही आया था। तो उन्होंने बोला एक तो या तो 12,500 मैक्सिमम आप ले सकते हो या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। बट ये आपकी उन्हीं इनकम के लिए अवेलेबल है अगर आपका 5 लाख तक की इनकम है। सपोज करो आपकी इनकम 5 लाख 1 हो जाए, ठीक है, तो आपको रिबेट ये जो मैं कैलकुलेट कर रही हूं ये अवेलेबल नहीं है। This rebate is not available if your income exceeds by just ₹1। ओके। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी एक बार ITR फाइल करी थी, उसमें 1-2 सैलरीड एम्प्लॉयज थे, उनकी सैलरी थी 5,01,000 रुपए या 5,06,000 रुपए। अब ये लगा लो 5,06,000 पे आपने 12,480 तो ऐसे निकाल दिया था, राइट। थोड़ा सा ज्यादा ही होगा वो, मतलब जरा सा भी मेरा 1 रुपए से इनकम बढ़ी मुझे 12,000 का टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, बट दिस इज अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। अभी हम ओल्ड टैक्स रिजीम कर रहे हैं, ओके। रिबेट में और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है मैं शेयर करूंगी प्रवीण, बट नॉट इन टुडेज क्लास। ओके मैम। या
Because what I generally do when it comes to income tax, I start with the practical version first. Otherwise पहली क्लास में आपको लगेगा क्या बोरिंग चीज पढ़ा रहे हो, तो आगे की क्लासेस में फिर इंटरेस्ट नहीं आता है. ठीक है. Yes, And I'm teaching income tax since 2018. Okay. So based on my experience, always start with the practical first and then बीच बीच में theoretical cover करते हैं हम लोग. मेरे ठीक एक है? क्वेश्चन है मैम यहाँ पे. हाँ जी. हाँ जी. अगर मैंने अर्न किया, हमारा सैलरी है मोर ये 5,10,000 फॉर एग्जांपल, राइट, हाँ. उसमें टैक्स एप्लीकेबल है और मैंने शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट करके रखा है, हाँ वहाँ जी. लॉसेस होता है, क्या ये लॉसेस यहाँ पे कवर होता है नहीं होता है? लॉसेस आप वो सेट ऑफ नहीं कर पाते हो सैलरी इनकम से, बट आप अगर रिटर्न टाइम पे फाइल करते हो तो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. लॉसेस कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि सपोज करो इस साल आपको लेट से 50,000 का नुकसान हुआ करेक्ट. मार्केट में लगा के. ठीक है. करेक्ट. अगले साल आपको प्रॉफिट हो गया से 80,000 का. करेक्ट. ठीक है. तो अगले साल आप जब टैक्स पे करोगे ना वो 30,000 पे करोगे. ओके. वो कैरी फॉरवर्ड होगा ना कि उससे माइनस होगा, और उसमें कुछ अमाउंट फिक्स्ड है. फॉर एग्जांपल हम अगर मानते हैं यहाँ पे 1 लाख या 50,000, उसको हम कैलकुलेट नहीं करके वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो 10 लाख तक कवर हो सकता है, 50 लाख तक कवर हो सकता है. जो मान लीजिए मेरा सैलरी है 5,10,000 और मेरा शेयर मार्केट में इस साल मान लीजिए मेरा 10 लाख का ये अर्लियर भी इनकम था, मेरा लॉस हुआ 10 लाख रुपीज़. तो उसमें कुछ अमाउंट फिक्स्ड है जो इतना स्लैब तक हम कवर कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कुछ फिक्स्ड है, या अर्निंग मेरा प्रॉफिट ज़्यादा भी हुआ है. मान लीजिए मैं एग्जांपल एक मानता हूँ, जो मेरे 10 लाख लॉस हुआ इस साल और अगली साल मेरा 11 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप 1 लाख पे टैक्स पे करोगे. 1 लाख पे टैक्स ये पेमेंट हाँ, करना मतलब पड़ेगा. कोई आप बोलो कि कोई अपर लिमिट तो नहीं है कि इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वो अपर Correct. लिमिट ऐसा कुछ नहीं. बट इसका बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटर्न आपके टाइम पे फाइल होनी चाहिए. ओके मैम. टाइम पे मतलब ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, तब तक हो जानी चाहिए. ठीक है. शॉर्ट टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? हाँ जी. हाँ जी, हो जाता है प्रोवाइडेड रिटर्न टाइम पे फाइल हो. ओके. ठीक है. ठीक है. शॉर्ट टर्म लॉस हो गया, फ्यूचर ऑप्शन का लॉस हो गया, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, उसका लॉस हो गया. इंट्राडे ट्रेडिंग वाला लॉस जो ये होता है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में कवर होता है, ये वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए? वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बस प्रोवाइडेड रिटर्न टाइम पे फाइल हो विद इन ड्यू डेट. ओके. ठीक है. ठीक. मतलब 31 जुलाई ड्यू डेट है हमारी रिटर्न की, जो हम कवर करेंगे आगे भी. अगर आपने 1 अगस्त को कर दिया ना, आपको 10 लाख का लॉस हो, 20 लाख का हो, आप कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे. ओके. ठीक है. हाँ. तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना बहुत जरूरी है, चाहे 31 को ही फाइल करो, लेकिन बहुत जरूरी है. ठीक है. ओके. यस अक्षय, यू वर सेइंग समथिंग. Hello. यस अक्षय. हाँ जी. Yeah, very good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Ma'am, I have a question. Suppose that my annual income is rupees 5 lakh. ओके. So, as per the income tax rules, we have no liability to pay. We have a zero liability. यस. Yeah, and now my income increased to 5 lakh 10,000. That is increased by 10,000. So, as per the rule, I have to pay the tax of 15,080 rupees. Yeah. So now prior when I had earning income of 5 lakhs, so there was no tax liability, but by increasing of 10,000 rupees, I have imposed additional tax liability of rupees 15,080. So यहाँ पे एक डिसबैलेंस की चीज है कि इनकम बढ़ी मेरी 10,000 और मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 15,080 रुपये हो गई. सो ये एक डिमोटिवेटिंग की बात है एम्प्लॉयज के लिए. वो ये क्यों कहेंगे कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब मेरी सैलरी 10,000 रुपये से बढ़ेगी तो मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज्यादा आ जाएगी. एग्री. हाँ. Yeah. अब मैं इसका आंसर करती हूँ कि ओल्ड टैक्स रेजिम में तो टैक्स लायबिलिटी आपकी यही आएगी जो आप बोल रहे हो. ठीक है. बट एक हमारा न्यू टैक्स रेजिम भी है जिसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. ओके. ठीक है. जो ऑब्वियसली आज के सेशन में तो नहीं कवर हो पाएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे. सो 7 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है. तो आपकी इनकम 510 हो, 550 हो, 6 हो या 650 हो, आपको तो अच्छा ही लगेगा, बिकॉज टैक्स फिर भी आप पे नहीं कर रहे. ओके. ठीक है. या थैंक यू मैम. हाँ. एक और क्वेश्चन आया है, रुकिए, शिवांश का. कैन यू प्लीज टेक वन एग्जांपल ऑफ टैक्स कैलकुलेशन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर मेंशन्ड इन पे स्लिप लाइक बेसिक पे, एचआरए, डीआरए, सैलरी अबव 5 लाख और 10 लाख पर एनम. ओके.
So Shivansh, as we are doing this course, we will be having separate sessions for salary chapter, okay? जिसमें हम बेसिक सैलरी क्या होता है, एचआरए क्या होता है, उसका पूरा कैलकुलेशन हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. Okay, we are going to study about the salary chapter in detail, like point to point. I will tell you how do we calculate the HR exemption. Okay, how to utilize the the benefit of maximum components which you can see in your salary slip. How to reduce your taxes. All this we are going to cover. But your question जो अभी आपका सैलरी वाला है वो इस मोमेंट पे मैं नहीं ले सकती हूँ. जब हम सैलरी चैप्टर करेंगे तब हम उसको देखेंगे. Okay, thank you. Okay. Any other questions? मैम ये उसी सेम पॉइंट में जाऊंगा, मुझे और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था. जो टैक्स हाँ जी. अमाउंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा नेक्स्ट इस महीने 10 लाख का लॉस हुआ था, करेक्ट? नेक्स्ट ईयर मेरा जो प्रॉफिट बना फॉर एग्जांपल, टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है मेरा 2,50,000 फॉर एग्जांपल, या 2 लाख रुपीज मेरा टैक्स बन रहा है. मेरा जो लास्ट ईयर जो लॉस हुआ था वो 10 लाख रुपीज हुआ था, और इस साल मेरा टैक्स बने वाले 2 लाख रुपीज. ये टोटल अमाउंट से माइनस होगा या उसमें कुछ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है जो इतना माइनस होगा जो अमाउंट है? देखो, कोई परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता. इसको ऐसे समझो, फाइनेंशियल 24-25, 23-24 लेते हैं, ठीक है? करेक्ट. एफएनओ लॉस ले लेते हैं, ठीक है? एफएनओ लॉस है और सैलरी इनकम है, करेक्ट. ओके? सैलरी मान लेते हैं, हमने बोला था 5,10,000 रुपए, करेक्ट. ठीक है? एफएनओ लॉस ले लेते हैं 10 लाख रुपीज, करेक्ट. ओके? तो इसका तो कुछ होना नहीं. 5-10 पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, करेक्ट. 23-24 में, और टैक्स पे कर दोगे. करेक्ट. और टैक्स भी नहीं पे करोगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम पे जाओगे तो ऑब्वियसली वो तो 7 लाख तक है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना? ठीक है. चलो अब आते हैं फाइनेंशियल 24-25 पे. करेक्ट. मेरा एफएनओ प्रॉफिट हो गया, लेट्स से 11 लाख रुपए का, हाँ. ठीक है? सैलरी इनकम मेरी 5,50 कर दूं या 5,10 ही रखूं? नहीं, ज्यादा करना है. सैलरी इनकम मेरा भी ज्यादा हो गया इस बार. 5,50 कर दूं? हाँ, 5,50. ठीक है. तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई? 16,50,000 रुपए. करेक्ट. अब इसमें से मैं एफएनओ लॉस सेट ऑफ कर सकती हूँ, सैलरी इनकम में से नहीं, प्रॉफिट में से बस 10 लाख रुपए. तो मेरा जो एफएनओ का जो प्रॉफिट आया वो बचा 1 लाख रुपए का, सैलरी मेरी बची 5,50 की. तो 6,50,000 पे मैं टैक्स पे करूं, ओके. ठीक है. ठीक है? प्रोवाइडेड रिटर्न टाइम पे फाइल की गई, ठीक है. क्लियर. ठीक है? इज दिस क्लियर? हाँ, क्लियर. ऑल्सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. से एफएनओ प्रॉफिट होता है 9 लाख रुपीस का, ठीक है? सैलरी का इनकम मेरा 5,50 ही रख लेते हैं. अब यहाँ तो 10 लाख का लॉस है, तो 9 लाख पूरा सेटअप हो जाएगा, राइट? ये तो हो गया 0, सैलरी बन गया 5,50, ठीक है? तो मेरा सैलरी इनकम आ गया 5,50,000. इस पे मैं टैक्स पे करूंगी एज पर ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम, व्हिचएवर इज सुटेबल फॉर अस. अगर अगर रेंटल इनकम भी आता है मैम, तो उसमें टोटल अमाउंट के ऊपर भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने रेंटल भी कहीं पे ये कर, तो मेरे नाम पे खुद रेंट भी आता है फॉर एग्जांपल, तो टोटल अमाउंट का जो भी इनकम होता है वो भी कवर होता है इसमें? हाँ, वो भी आएगा, रेंटल वाला भी आएगा, ठीक है? तो अब 5,50 पे करूंगी. अब बताओ, 10 लाख का लॉस था, करेक्ट. 9 लाख रुपए सेटअप हो गए. 1 लाख का लॉस आप अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. अप टू 8 years यू कैन कैरी फॉरवर्ड द सेम. ओके. 8 ईयर तक कर सकते हैं हम. हाँ, 8 years तक कर सकते हैं. ये हम सेपरेटली भी कवर करेंगे. सो इफ देयर इज एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट राइट नाउ, डोंट वरी, वी विल बी हैविंग द सेपरेट सेशंस फॉर इट, लाइक द प्रॉपर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का सेशन होगा, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, then please do let me know. Any other question, any other suggestion, feedback that you would like to conduct these sessions in this particular manner, we can discuss the same. Class आपकी, आपको चलानी है, और अगर आपको लगता है कि इसको इस तरीके से डिलीवर करना है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलो, हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलो, whatever it is, whatever the suggestions you have, you should give it to me so that I can implement the same from my next session onwards. Sure ma'am, no issue. Okay. Thank you, Akshay. Okay.
Any other queries? Okay. So shall I wind up the session now? इनके पास Because whatever- क्वेश्चंस आज नहीं है. Yes, you can find out. Thank you, Shivangi. Yes. Any Okay. questions people have? I think we should go for the next classes. Today is for all. Thank you very much. Thank you, Shivangi. Okay. Thank you, Pratyushi. Thank you, everyone. Please take care of yourself. Let's meet in our next session. Thank you, ma'am. Jai.